मैम शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ हाँ, स्क्रीन मुझे शो हो रही है। आप इसको प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो। कैसे एक्सप्लेन करेंगी? Just intro then. I am Richa Sharma. I made a presentation on Sutra 5, Sunyam Samya Samuchaya. Before going to this sutra, I would like to tell something about Vedic maths. What is Vedic mathematics? Vedic mathematics is an ancient trick to solve mathematical calculation with accurately with precision. And Swami Bharti Krishna Tirth Maharaj wrote a book named Vedic Mathematics, in which he mentioned 16 sutras and 13 sub-sutras. Uh, in the beginning, the Bharati Krishna Tirth wrote the sutras in the manuscript, but the script was lost. In the year 1957, he wrote 16 sutras in a book called Vedic Mathematics. He was planning to write other sutras, but due to cataract developed in both eyes, and he died in 1960, so he couldn't write more sutras. And what is the importance of Vedic maths? It is very fast in comparison to basic calculation. It is around 10 to 15 times faster than basic calculation. Even it is useful for the grade 1st to 12th standard, not only for the just for the calculation, multiplication, addition, subtraction. Even we can we can solve the complex number, trigonometrical problem. And even if we know Vedic mathematics, we don't cram all the tables. We should know only table of 9, and we can do calculation. It improves concentration and the confidence of the student. And Vedic mathematics is very easy to learn and great fun for the students. Now I would like to tell the Sutra 5, Shunyam Samya Samuchaya. इसका संस्कृत नेम है शून्यम साम्य समुच्चय. English translation है. In it, it has different meaning in different contexts. In general, its meaning it is related to equating with zeros, equating with shunya. Suppose first meaning है a term which occurs as a common factor in all the terms is equated to zero. सब example से मैं explain करती हूँ. Suppose 12x plus 3x is equal to 4x plus 3x. Here x is the common factor of the both the sides, so x is equal to 0. Hence x plus 3 is equal to 0. Common factor is x plus 3, then x plus 3 is equal to 0. Here x is equal to minus 3. Second meaning, the product of the independent terms is same both sides, then they equated to 0. Suppose we have x plus 5, x plus 4 is equal to x plus 2 or x plus 10. A product of the non-independent terms, suppose 5 and 5 into 4 is equal to 2 into 10, 20. Both are 20, then x is equal to 0. What is the third meaning? The sum of the denominator of the two fraction having the same numerical numerator. Like this, 1 upon 2x minus 1 plus 1 upon 4x minus 1. Here numerator is same, both are 1. Then we can have sum of the denominator 2x minus 1 plus 4x minus 1. If we solve this, it will give x is equal to 1 upon 3. The fourth meaning, the sum of the numerator and the sum of the denominator is the same. Then that the sum equate to 0. Suppose 2x plus 9 upon 2x plus 7 is equal to 2x plus 9 upon 2x plus 9.
So if we add 2x plus 9 plus 2x plus 7 is equal to 0. Because sum of the numerator and sum of the denominator is 0. 4x plus 16 is equal to 0 if we add both uh, numerator and denominator. Hence, x is equal to minus 4. If there is a numerical factor in the algebraic sum, then we remove that factor. Suppose we have example 3x plus 4 upon 6x plus 1 is equal to x plus 1 upon 2x plus 3. If we add, we get uh, right hand side we get 4x plus 5 and numerator we got 4x plus 5 and denominator we get 8x plus 10. So we can get common 2 and the factor is 4x plus 5. Here 4x plus 5 is in the both the side numerator and denominator, so we can remove it. Hence 4x plus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 4 and minus 5 by 4. If we have some common factor. If suppose we don't have common factor, what we will do, it's in a fifth meaning. Here we suppose there is one example also, 3x plus 5 upon 6x plus 1 is equal to 5x plus 6 upon 2x plus 3. As we like in the previous meaning, addition of the both the numerator is equal to addition of both the denominator. So one meaning is x is equal to minus 5 by 4. Like previous example, but here if we multiply cross multiplication, the factor of x square is not same, so we cannot get cancelled, and it is a quadratic equation, so we have to find out the second root as well. For this to calculate denominator minus d1 minus d2 and n1 minus n2, we get 2x plus 1. Hence the second root, second value of the x is minus 1. That's all. Hello. ये ठीक हाँ है, जी एक मैम। बार जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था ना वो दिखाओ, इससे पहले वाला। हाँ, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट। दिस वन। हाँ, इसको एक बार चेक करना, ये ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक्स है? 4x ये कॉमन आ रहा है मैम x, जैसे 2x plus 3 is equal to 4x plus 3. This is different example actually. मैम कहाँ पर? इसी को 12x plus 3x is equals to जो आपने 4x plus 3x लिखा है ना ये, और नीचे 9x plus 3 is equals to 4x. मैम ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें x plus 3 कॉमन आ रहा है, उसमें x कॉमन आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोएफिशिएंट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए फिर अगर सेम आ रहा है तो, या यही एग्जांपल करेक्ट है? ये एग्जाम्पल मैम जैसे फर्स्ट वाले में x कॉमन आ रहा है तो हमने इसलिए x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नीचे जो सेकंड एग्जाम्पल है मैं इसको अलग कर देती हूँ, थोड़ा दूर वो कर ठीक देती है हूँ। आपकी बात कि x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ये 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, और इसमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा है तो x इज इक्वल टू -3 आएगा तो ये इसका भी 0 आंसर। 0, ठीक है ठीक। हाँ ये भी यहाँ पे 0 किया 1 ना। और 2 डाल दो, 1 और 2 डाल दो। अच्छा, क्योंकि जिसका जो फैक्टर हमारा कॉमन आ रहा है तो उसको हमें इक्वेट करना है 0 से। ओके 1 2 डाल देती हूँ मैम, इसको मैं 1 2 करके इसको थोड़ा सा सेपरेट, वही अभी थोड़ा सा मुझे लास्ट फॉर्मेटिंग। और मैम देखिए ये पे नंबर डाल देना बस आप। हाँ ये ठीक ठीक है, और जो एग्जांपल्स की लिखा है ना एग्जांपल, इसको बोल्ड कर देना।
अच्छा ठीक है ना, है। तो ये अलग पता चल जाएगा कि मीनिंग एंड एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी ठीक ठीक है पीपीटी, गुड। तो अभी थोड़ा सबको सा समझ में मैंने आ सिर्फ गया। मे बी आपने स्टार्टिंग में जो वैदिक मैथ्स का वो लिखा है ना कि क्यों हाँ ये नेसेसरी है मैं ये सब, नहीं बताऊं तो हो सकता ये। है कि इम्पोर्टेंस वगैरह इस वजह से हाँ आपको फर्स्ट पे रखा जाए, अगर किसी और की पीपीटी में ये चीजें नहीं मिलती हैं तो, कि आपको पहले वाइवा देना पड़े। पहले मैं सोच रही थी मैम ये रखूं या नहीं रखूं, इसमें मुझे नहीं, थोड़ा ओके, डाउट हो रहा ठीक है, था। आपने अच्छा, बिल्कुल ठीक पढ़ा। फिर मेरे बहुत ही कम पेजेस हो रहे थे तो मैंने थोड़ा सा उसको मतलब टाइम के लिए ये मैंने ऐड करा है इसमें तो। हाँ ये ओके है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? हाँ बिल्कुल, अभी कृपया। कंप्लीट जी, मैं दे रही हूँ मैम। ओके ओके। मैम अभी मेरे को 5 मिनट दीजिए, कोई और करता है तो मैं तब तक ये सिंक कर लेती हूँ। मेरा आईपैड सिंक नहीं कर रहा कंप्यूटर से। ओके ठीक है। हिमांशु, मैम। यस मैम। तुम्हारा रेडी है? यस मैम रेडी है। अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। ठीक, तुम कर दो। अभी देखता हूँ मैं करके। मैम हो रही है शेयर स्क्रीन? शेयर हो रही है, लेकिन वाइवा में ना या तो लैपटॉप से करना, क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है। जी मैम। ठीक है, तो पहले से रेडी रहना। चलो स्टार्ट करो। ओके मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय टॉपिक which is the Mahaviracharya. Now I want to tell you about its introduction. महावीराचार्य का जो जन्म वर्ष माना जाता है वो 9वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, और ये महावीराचार्य दिगंबर जैन शाखा के प्रमुख गणितज्ञ थे। इनका निवास स्थान कर्नाटक प्रांत में था। ये राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वंश के राज्य में रहा करते थे। इसी काल में इन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ गणित सार संग्रह की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इस ग्रंथ में 9 अध्याय तथा 1131 श्लोक है। और महावीराचार्य ने गणित शास्त्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बहुवीर प्रलापे किम त्रैलोक्य सचराचरे यद किंचित वस्तु तरसम गणितेन विना नहीं। अर्थात इसका मतलब ये है कि गणित के बारे में बहुत क्या कहना, तीनों लोकों में सचराचर चेतन और जड़ जगत में जो भी वस्तु विद्यमान है वे सभी गणित के बिना संभव नहीं है। और अब इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधि ज्ञात की है, और परमुटेशन जो संचय है उनको ज्ञात करने का सूत्र भी सर्वप्रथम महावीराचार्य जी ने ही दिया था। इन्होंने संचयों की संख्या निकालने के लिए निम्न सूत्र दिया: n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 and up to n minus r plus 1 upon 1 into 2 into 3 up to r। यहाँ पर n वस्तुओं की संख्या है तथा r जितनी वस्तुएं लेकर संचय बनाना है उनकी संख्या है। और इन्होंने बीजीय व्यंजकों के 2 या 2 से अधिक पदों के वर्ग और घन के विस्तार की भी विधि दी है। और इन्होंने
संख्याओं के वर्ग तथा वर्गमूल के विषय में भी अनेक महत्वपूर्ण सूत्र ज्ञात किए हैं तथा इन्होंने ये भी बताया है कि ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालना संभव नहीं है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। और इस प्रकार इन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है। इन्होंने त्रिभुज, चतुर्भुज आदि की सटीक व्याख्या की है और ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना जिसमें भुजाओं के क्षेत्रफल तथा परिगत वृत्त के व्यास सभी की माप इन्होंने पूर्ण संख्याएं ज्ञात की है। और समीर श्रेणी पर भी इनका विशेष योगदान रहा है। महावीराचार्य जी ने जो है निम्न श्रेणी के योग का सूत्र बताया है जो इनके सर्वोत्तम योगदान कहा जाता है। इसमें इन्होंने यदि r हम 1 से बड़ा लेंगे तो इन्होंने ये पहले वाला नंबर का सूत्र बताया है। इस प्रकार से महावीराचार्य जी ने गुणोत्तर श्रेणी का गहराई से विचार किया है और गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र भी दिया है। और इन्होंने अनेक छिन्नक जैसे ठोसों के आयतन ज्ञात करने के भी बहुत सारे सूत्र अपने गणित सार संग्रह में दिए हैं। इस प्रकार से इनका एक विशिष्ट स्थान है। अब यदि हम इनके गणित सार संग्रह की बात करें तो इन्होंने 1850 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ में इन्होंने 9 अध्याय और 1131 श्लोक है। 1963 ईस्वी में प्रोफेसर लक्ष्मीचंद ने अंग्रेजी अनुवाद को आधार मानकर इसका हिंदी में अनुवाद किया था तथा यह ग्रंथ 8 अध्यायों में वर्णित था। लेकिन जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो मूल रचना को प्रथम अध्याय परिक्रम व्यवहार को 2 अध्यायों में बदल दिया गया, जिसके आधार पर इसके अध्यायों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। वे मूल अध्याय क्रमशः अधिकार परिक्रम, व्यवहार कला, संवर्ण व्यवहार, परिकर्णक व्यवहार, त्रेसिक व्यवहार, मिश्रक व्यवहार, खात व्यवहार और छाया व्यवहार आदि है। इन 8 अध्यायों के माध्यम से ही इन्होंने उस वक्त के गणित ज्ञान के विषय को बहुत ही रोचक एवं सरल रूप में उल्लेखित किया है। इस प्रकार हम उनके अनेक उल्लेखनीय कार्य की बात कर सकते हैं। जैसे महावीराचार्य ने ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालने का भी सूत्र बताया है और इन्होंने जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की भी अनेक विधियां बताई है। और इन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में भी इन्होंने अज्ञात राशि एवं उच्च जातीय समीकरण के साथ 2 अज्ञात राशि और अनेक प्रकार के समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां, व्यवहारिक विधियां बताई है। इन्होंने ब्याज, क्रय विक्रय आदि की भी व्याख्या की है और उनको उदाहरणों के द्वारा समझाया है। इस प्रकार उन्होंने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, मिश्रित श्रेणी का भी अध्ययन किया है और क्रमचय संचय के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना है, इनसे संबंधित नियम इन्होंने अपने इस ग्रंथ में बताए हैं। यह बात गौर करने वाली है कि यूरोप में जो एलसीएम निकालने की विधि थी वो 15वीं शताब्दी में खोजी गई थी, जबकि महावीराचार्य जी ने इसका बखान 1850 ईस्वी में ही कर दिया था। इस प्रकार इनके बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य रहे। थैंक यू। ये 1850 ही लिखा है तुमने, 850 दिख रहा है, या तो ये स्क्रीन पे मुझे नहीं यहाँ पे मैम 850 है वो, मैं 850 ही है। 1850 बोल रहे हो ना? नहीं मैम 850 ही है वो, सॉरी ठीक है, गलती से ठीक हो है। गई। जो लिखा है ना वही बोलना है, मतलब मैम करेक्ट करेंगी तो फिर वाइवा में मार्क्स कट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? अच्छा ओके और मैम। अपना नाम तो तुमने बताया नहीं, वो नाम भी बताना है स्टार्टिंग में, वो तो नहीं जानते ना एग्जामिनर। अच्छा ओके मैम, ओके ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, ओके मैम। चलिए मैम, मैं कनेक्ट करने के करती हूँ, आप पोस्ट ठीक। बनाइए। शेयर कीजिए, सब शेयर कर सकते हैं 1 by 1 बट ओके, आई एम ट्राइंग।
हटा दो, इनमें नहीं है। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका वाईफाई शो हाँ, स्क्रीन मुझे शो हो रही है, आप प्रेजेंट कर सकते हो। अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है। हो गया। हाँ, स्टार्ट कीजिए। ये आ ही नहीं रहा। अब क्या हो गया इसको? मैम दिख रहा है? दिख रहा है मुझे, लेकिन आई थिंक ये ना इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो आप, क्योंकि पूरी स्लाइड स्क्रीन पे एक बार में व्यू नहीं हो रही है ना, आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फर्स्ट पेज तो एक बार में ही आना एक्चुअली चाहिए। नोटबिलिटी पे है मैम, ये पूरी वो नहीं है, बिकॉज उसमें मुझे काम भी करके दिखाना था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट ठीक करो। ठीक। हाँ जी। So I'm Reva Nanchahal, and I'm presenting today the project on Vedic Mathematics Sutra number 14, which is Ek Nyunya Purvena. And I really welcome you all to this session. And today is the day when we take up the 14th sutra given by Jagat Guru Shri Bharti Krishna Tirtha Ji Maharaj, who is the father of Vedic mathematics. Ek Nyunya Purvena. It literally iska meaning hai one less than the previous. It is a specific method of multiplication. Specific मतलब कि अभी आपको बताएंगे कि किन conditions में ही ये जो मेथड है यूज होता है, सूत्रा यूज होता है. इट इज नॉट अ जनरल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन wherein the multiplier digits consist entirely of nines. 9 और 9 की सीरीज से ही हम मल्टीप्लाई यदि करना हो तो हम ये सूत्रा यूज कर सकते हैं. इसमें 3 कंडीशंस हैं. यदि हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं. एक तो यही है कि 9 या 9 की सीरीज होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा है when the multiplicand and the multiplier each consist of equal number of digits. दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, जैसे ये टाइप 1 है. यहां पर मैं दिखा रही हूं टाइप 1. एक सेकेंड. This is type 1 when we have equal number of digits on both sides. 999 multiplied by 3 digits, 3, 4, 5. And the second condition is when the multiplier has more digits than the multiplicand. So here the multiplier has 3 digits and the multiplicand has 2 digits only.
And the third condition is when the multiplicand has more digits than the multiplier. So in this case, the multiplicand has more digits, 3 digits हैं यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 2 digits हैं. तो इन conditions में हम कैसे कर सकते हैं multiplication? So the method is very simple. एक न्यून्य means 1 less than the previous. So सबसे पहले हम ये जो हमारा number है, इससे हम 1 less करेंगे. So when we reduce 1, it becomes 344. And now it is all from 9, and either you do last from 10 from the number itself or from what we have got after subtraction. So 9 minus 3 is 6, 9 minus 4 is 5, and 9 minus 4 is 5. This is our product. Now in second type 2, how we do? We actually make the digits same on both sides. We can prefix a 0 to make the digits same. So now we have, and then ek न्यून्य means reduce 1. So we have 0, 3, 7. And now the same thing. 9 minus 0 is 9. 9 minus 3 is 6. And 9 minus 7 is 2. So this is the product. और जो थर्ड वाला टाइप है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें क्या है कि हमने एक न्यून्य करा 632 में से जब हमने 1 रिड्यूस करा, सो वी गेट 631. और अब इसकी जो 2 डिजिट्स हैं, ये जो 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 2 9 हैं, सो हम ये 2 डिजिट्स को केवल इसमें से माइनस करेंगे. आप ये सोच लीजिए कि ये राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. सो यहाँ पर यदि हम 99 में से 31 को माइनस करेंगे, सो वी गेट 68. अब ये जो 2 डिजिट्स तो हमने यहाँ पर 9 के नीचे यूज कर ली हैं, पर ये जो 6 रह गया है, ये पूरे इस 631 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 625, एंड देन वी सफिक्स 668 विद इट. दिस इज द प्रोडक्ट. सो जहां पर ये मल्टीप्लायर में डिजिट्स जो हैं वो थोड़ी कम है इससे, तो हम ऐसे ही करते हैं उसको, जितनी डिजिट्स हमारे पास यहाँ आए उनको इनमें से सब्ट्रैक्ट करके, और जो रिमेनिंग डिजिट है वो इस पूरे में से माइनस करते हैं, और ये हमारा आंसर आता है. अब ये देखिए कि इसका ये अलजेब्रिक प्रूफ है कि क्या कैसे ये जो है एक न्यून्य जो है कर रहा. यहाँ पर अलजेब्रिक प्रूफ दिया गया है 2 डिजिट के लिए. नंबर जैसे 37 जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 99 करके, इसी तरह से जैसे हमने बताया है कि अब जब ऐसे करेंगे तो थाउजेंड्स प्लेस पे तो 3 आएगा, सो 3 है. 100th प्लेस पे जो हमारा आ रहा है 7, उसको हम एक रिड्यूस करेंगे, 6 आएगा, और बाकी हमारा जो है वो 99 में से जो डिफरेंस आएगा वो है. तो इस तरह से अलजेब्रिक प्रूफ इसका दिया गया है. उसके बाद ये है कि हमने ये सीख तो लिया कि ये मतलब इट इज सो इजी, और ये मेथड जो सूत्र है, मतलब इट गोज अ लॉन्ग वे टू रादर ऑथेंटिकेट व्हाट वी कीप सेइंग अबाउट वैदिक मैथ्स, कि वैदिक मैथ्स इजी है, वैदिक मैथ्स फोबिया हटाता है, वैदिक मैथ्स कैन बी बी इंक्रीजिंग द फोकस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन, एंड वैदिक मैथ्स वुड imbibe the interest in the students to learn mathematics. वो तो हो गया. ये सूत्र बहुत इसके उस में ये सूत्र बहुत काम आता है, मतलब एकदम यदि उसको प्रेजेंट किया जाए तो बच्चों में एकदम से एक्साइटमेंट आ जाती है. अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे, मगर ये है कि हमने यहाँ ये तो सीख लिया, बट क्या हमें इसको इसके आगे चलाना चाहिए? हमने इन 3 कंडीशंस को देख लिया, लेकिन इनकी एप्लीकेबिलिटी में बच्चे जो हैं वो रवा हो जाएं, उसमें वो एकदम से मतलब पहचान पाए कि हमने इधर ये अप्लाई करना है, तो हमें उनको डिफरेंट कंडीशंस में इन नंबर्स को जहां पर कि ये सूत्र अप्लाई हो सकता है, मगर विजुअली वो एकदम देखने से नहीं कर पाएंगे, तो हमें उनको काफी प्रैक्टिस देने की जरूरत है. जैसे हमने ये वाला नंबर लिया, इसमें एकदम से देखने से बच्चे को नहीं पता लगेगा कि वही सूत्र यूज हो रहा है, मगर हमें ये देखना है कि यहाँ पर भी यही
टू डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, हम इसको सिंपली पहले डेसिमल्स और जीरो को इग्नोर कर दें और उसके बाद हम इसका यदि हम सॉल्व करते हैं, सो रिड्यूसिंग 1, सो 54 आ जाएगा और उसके बाद 9 - 5 is 4 एंड 9 - 4 is 5 और उसके बाद हमने सिखाना है कि किस तरह कितनी डेसिमल्स प्लेसेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लाइक 2 डेसिमल प्लेसेस एंड देन 4 डेसिमल प्लेसेस, सो टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस हमें देकर हमें ये आंसर मिलेगा। इसी तरह से हम ये डिफरेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट तरह से हम प्रेजेंट करके बच्चों के सामने जब हम रखेंगे तो वो, और जो इसको हम कहें कि कंसंट्रेशन बढ़े, फोकस बढ़े, उसमें ये बहुत काम करता है। अब जैसे ये 6.5% ऑफ 99, ये मैंने एक सिंप्लीफिकेशन की उसमें देखा था सम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें वैसे यदि कोई करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, लेकिन यदि वो एक न्यूनया यूज कर रहा है तो कितनी इजीली वो कर लेगा कि पहले वो 65 को मतलब 99 से कर दे, अभी परसेंट और वो सब इग्नोर करके, सो वी 1 गेट्स 6 4 3 5 और उसके बाद डेसिमल प्लेस, क्योंकि परसेंटेज है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 8.3% ऑफ 99 है तो हम 8 टू एक न्यून्य करके हमारा ये नंबर आ जाएगा और फिर डेसिमल प्लेस करके हम इसको एकदम से यदि ऐड कर दें तो इजीली बच्चा ये निकाल सकता है। इसके अलावा इस तरह के जो सम्स हैं, ये जो सम है, यदि हम वो एक न्यूनया ही यूज करते हैं तो इसमें हमें करना क्या है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये ऐड करना है। और जब हम ये करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको सिर्फ हम यदि एक बढ़ा के लगा दें 135 से, जैसे यदि हमने इससे मल्टीप्लाई करना है इन दो को, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ये और ये तो इसके साथ कैंसिल ही हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 998 और उसके बाद है 001 और फिर उसके में हम यदि 135 को ऐड करते हैं तो 998136। तो एक्चुअली यदि इस तरह का आंसर हो तो बच्चा यदि सिर्फ इसको ये इसमें 1 लेस करे, एक न्यून्य, और इसमें एक ऐड करके यदि इसको जोड़ दे तो आंसर इजीली आ जाता है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको यदि देखा जाए तो ये 1998 जो है, दिस इज 2 लेस देन 2000, सो इट इज 1 लेस देन 1000, सो दैट मीन्स ये भी 999 ही है और इसका भी परसेंटेज हम आराम से निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो सूत्रा जो है वो एक लेवल पर तो हमने सीखा, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी को कितना हम और वाइडन कर सकते हैं, उसका स्कोप कितना और बढ़ा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये दिस सूत्रा गोज अ लॉन्ग वे टू एक्चुअली, ये सब करने के बाद जब हम बच्चे से पूछेंगे ना कि क्या आपको लगता है कि इट इज इजी टू लर्न, मैथ्स इज इजी, मैथ्स इज इंटरेस्टिंग, हर में वो बच्चे कहेंगे यस यस यस, या मैथ्स फोबिया खत्म, नंबर क्रंचिंग कैसे कर सकते हैं। सो दिस सूत्रा गोज अ लॉन्ग वे और हम इसमें बहुत सारी गेम्स जैसे एक्टिविटीज जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक का एग्जांपल आपको देती हूँ, रेस। मान लीजिए वेट मीटिंग ओवर होने वाली है, इसको दोबारा से ज्वाइन करना, देन यहाँ से प्रेजेंट करना। ठीक, ओके।